Um, give me a second. Oh, okay. What I'm going to do is I'm going to rename one of I've logged myself in through 2 sessions. I'm going to read chats through one. Okay. The participant where I have written chat, please chat there. And the participant where I've written screen, that is only for screen. Okay. What I have done is our exercise 3.5 was pending. So what we'll do is we'll continue with that session. We'll finish that session today. A very simple exercise. If you have studied what is exercise 3.4, then exercise 3.5 shall not be different. The initial few sums of exercise 3.5 are exactly similar to 3.4, which I will be taking at the end of 3.5. And today we'll initially start with factor theorem and remainder theorem. I hope everybody is fine. Okay. Now students, all of you know about long division that you have studied in standard 8. Now division of polynomial, long division that you have studied in standard 8, the separate chapter. So we have seen two types of situation. One is this. This is what you have studied in really lower standard where numbers were involved. In standard 8, we studied long division somewhat like this, which involves polynomials, which involves two different expressions to be divided. So the expression which is there on the right hand side of your screen, you have done it in standard 8, right? Say yes or no. Message me yes or no, students. Okay, Mrunal says yes. Shruti says yes. Aishwarya says yes. Yes, it's synthetic division that we studied this year. And that has few limitations as I talked about. So not a problem, students. Now, what we know is there is a very important thing we need to understand. What is this called as quotient? And this called as remainder. Similarly, for the next expressions, next division, this is quotient and this is remainder. So everybody knows what is a quotient and what is a remainder. Anybody who understands what do I mean by factor? When do I call any divisor to be the factor of the dividend? When do we call that? Anybody who knows it? Anybody? Okay. Yes. Say. You can say. Just don't ask, can I say? Just say. Anybody who knows the answer? I'm waiting for the answer. Okay. When do I say? Daniel, you're close. When do I say whether a particular number is the divisor of other or a particular expression is a divisor of another expression? Whether factor of another expression or not? Okay. Rishi Jain from Ghatkopar has given me the perfect answer. Whenever the remainder is 0, only then the divisor is the factor of the dividend, otherwise not. Now, if you check here, when I divide 1641, if you check here, just give me a second, I'll just take the pointer. Here, 1641, when we divide it by 3, the remainder is 0. This is the remainder, right? That is what we have written. So I can say that 3 is the factor of 1641. Okay, can I tell, now you tell me whether x plus 1 is the factor of 3x raised to 4 plus 0x cube plus 0x square minus 12x plus 5. Is it a factor or no? Kya baat hai? Aishwarya Thorat was the first one to answer. No. Sahil Gupta, very good. Mahi Goyal, very good. So most of you have told me, no, it's not a factor. So what is very important to understand before we go ahead, trust me students, the sums that we are going to do is really very simple. The only thing matters is presentation. There is only one single type of sum with different headings.
what we are going to study is remainder theorem and factor theorem. In both the parts we are supposed to find remainder only. अगर रिमाइंडर पूछा तो सिर्फ रिमाइंडर ढूंढने का और छोड़ देने का. अगर फैक्टर है का नहीं पूछा तो भी रिमाइंडर ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो ही वो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है. तो दो टाइप का सम है. एक में हमको रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा, we'll have to find out whether it is the remainder or not, and second type of sum whether it is the factor or not. So कोई भी टाइप का सम हो, मुझको क्या ढूंढना पड़ेगा? जल्दी मैसेज करो, अभी अभी बताया मैंने. क्या ढूंढना पड़ेगा? क्या ढूंढना पड़ेगा? Yes, Aishwarya once again, she is the fastest to answer from Vikroli. Then Ayan, then Sahil, then Indrayani, then Saujanya Shetty and Nunal and so on. So definitely, अगर फैक्टर पूछा है या रिमाइंडर पूछा है, हमको रिमाइंडर तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फैक्टर है क्या नहीं कब पता चलता है? जब रिमाइंडर 0 है. Now when we start with the sum, you will be very clear with the things. So let us start with exercise 3.5. Question number 5 first. Divide the first polynomial with the second polynomial and find the remainder using the remainder theorem. Okay. Now we have to divide. Now without no Mrunal, just pay attention first. अभी मुझे पूछा है whether m-3. अभी यहाँ पे मुझे पूछा है ये m-3 डिवाइजर है. m-3 is the factor of 554m cube plus 18m square minus 27m plus 5 or not. Okay. मुझे पूछा है रिमाइंडर क्या है. अभी रिमाइंडर ढूंढने का बहुत सिंपल टेक्निक. अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्वोशंट पूछा है क्या? क्वोशंट पूछा है? क्वोशंट पूछा है क्या? बताओ. यस नो आंसर करो जल्दी जल्दी जल्दी. नो वेरी गुड Daniel was the first person to answer. Okay, no. Is my voice clear? Ria from Saitham says I need to be a louder a bit. I think my voice is clear, right? Am I clear? If I'm clear, it's very clear. Okay, thank you, Mahi. Yeah, it's clear. So if you feel my voice is not clear, I would like you to leave the lecture and come back again. Okay. So anyways, there are internet fluctuations, so don't worry about it. No. We don't have to do that. Now, students, you were answering that we do not have to find out quotient. Now, whenever the quotient is not required and we just want to find out remainder, and it is clearly told that using remainder theorem. See, the question says using remainder theorem. Now, remainder theorem is a theorem which is used to find remainder even without dividing. It's a very simple technique. Just pay attention. First, we will name the polynomial. We'll say P of m is equal to 5m cube plus 18m square minus 27m plus 5. So I have named named this polynomial dividend to be P of m. Now, students, as we did in synthetic division, अभी यहाँ पे -3 है डिवाइजर में. तो तुम लोग बताओ मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं? क्या बात है, समीरा ने पहले आंसर दे दिया. क्या सब्स्टिट्यूट करूं? क्या बात है. साहिल गुप्ता फ्रॉम डीएन नगर, ऋषि जैन फ्रॉम घाटकोपर, सोहम फ्रॉम घाटकोपर, अरमान फ्रॉम घाटकोपर. क्या बात है. ओके ग्रेट. तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमको पता है अभी जैसा तुमने बोला यहाँ पे -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? जहां जहां पे m है वहां पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो याद रखो अभी ये पूरा पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? जहां जहां पे m है वहां पे 3. Wherever there is m, we will write 3. In the place of m, we will write 3. So P of m will become P of 3. 54 as it is. M cube will become 3 cube plus 18. M square will become 3 square minus 27. M will become 3 plus 5. अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ये पूरा स्टेप में मैंने क्या किया? जहां जहां पे m है वहां पे 3 डाला. अभी एकदम इसको सिंप्लीफाई करने का है. 54 as it is. 3 cube is 27. 18 as it is. 3 square is 9. 27 3s are 81 plus 5. ओके अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 54 into 27, 18 into 9 minus 81 plus 5. मुझे ये स्टेप शायद बहुत ज्यादा पसंद आया तो 2 बार लिखा. तुम लोग एक ही बार लिखना. 54 into 27. क्या बात है. सौजन्य is giving me the right answers. It is 1458. सौजन्य, check it. 18 9s are 162 minus 81 plus 5. अभी ऐड करेंगे. पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं. 1458 plus 162. It is 1620 minus 81 plus 5. ऐसे लिखा. Now 1620 minus 81 किया तो तुमको आएगा 1539 plus 5. Now 1539 plus 5 किया तो 1544. ये समझ में आया? अभी रिमाइंडर थियरम क्या बोलता है पता है?
सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी आंसर आया ना वही मेरा रिमाइंडर है. The value that we got after substituting is the remainder. So we will simply say by remainder theorem, remainder is equal to P of 3, which is 1544. I hope this sum is clear. Very simple. It's exercise 3.5. I started with that dialogue. 3.5. You need to be paying attention, Samuel. Okay, I hope this sum is clear. I'm giving you 2 minutes to copy down. Quickly copy down. अच्छा मुझे बताओ अगर फैक्टर है क्या नहीं पूछा होता. यहाँ पे पूछा तो नहीं है. नहीं, we do not have to find anything else. This is the remainder. Remainder ढूंढने बोला ना. अगर फैक्टर है क्या नहीं पूछा होता तो मुझे बताओ ये फैक्टर है क्या. Is it a factor? Yes, no. No, it is not a factor. Why it is not a factor? Everybody is saying no. Why it is not a factor? Anybody who can tell me the reason? Okay, it is not 0. No, nobody. The first one to give me the absolutely right answer was the remainder is not 0. Everybody is saying it is not 0, but only from Rishi Jain from Ghatkopar gave me the perfect answer because the remainder is not 0. Then Samina Dalvi, 0 is not the remainder. Very good. And then Dear Nagar Ayan Batliwala has given me, and then Aishwarya Thorat, and so on. Okay, it's very simple, right? Is it done? Once, if you are done writing, students write done. Done, right? Done. Okay. Most of you are done. To the count of 5, I am changing the screen. If you have not yet finished, I would request you to take the screenshot or take it from the video later on. Okay, I'm going to the next sum. Okay, students. Now, once again, we are supposed to find out whether it is the remainder or not. Now, I am going to unmute somebody and going to ask them to help me. Now, who wants to answer? Who wants to help me answering? Okay, who is going to help me solve this sum? Okay, nobody wants to, so I'll pick up somebody. Okay, Harshit Patel, you have not mentioned your branch name, Harshit. Harshit, I've asked you to unmute yourself. If you can unmute yourself. Sir, because I have rejoined, so I forgot to. Acha. No problem. You're from which branch, Harshit? Ghatkopar. No problem. Harshit, okay, we will do that sum together. Okay, Harshit? Yes, sir. Now, we are supposed to find out the remainder using remainder theorem. तो हर्षित मुझे बताओ, मुझे actually division करना पड़ेगा क्या remainder ढूंढने के लिए? नहीं. तो हम लोग सबसे पहले इसको नाम देंगे. अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? जैसे प्रीवियस सम में m यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? x. तो इसको नाम दे दिया p of x, राइट? ये समझा? यहाँ अभी क्या करना है? अभी हर्षित रिमाइंडर ढूंढना है. अभी मेरा डिवाइजर है x माइनस है, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं हर्षित? हेलो हर्षित, x माइनस a है, तो क्या सब्स्टिट्यूट क्या करूं? x के a. क्यों a सब्स्टिट्यूट करो? क्योंकि x है पहले से. x है पहले से, इधर माइनस a है, इसके लिए प्लस a है ना. अच्छा हर्षित, अगर x प्लस 2 होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करता था? हाँ, 2 ना, -2 साइन चेंज करता था. अगर x -3 होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करता था हर्षित? +3. अगर x +4 होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करता हर्षित? -4. अच्छा, ये सब में x -a है तो क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? पॉजिटिव है. हर्षित, योर इंटरनेट इज अ बिट लैगिंग. हर्षित, यू कैन हियर मी हर्षित? Yes, sir. Okay, Harshit, I'm going to put you on mute because your voice is cracking a bit. I hope everybody else can listen to me properly, right? Okay, Harshit, I will solve this sum ahead. Okay, students, now it is very clear कि एक substitute करना है. हर्षित ने हमको बताया. तो हम लोग क्या करेंगे? जहां पे x है, वहां पे a substitute करेंगे. अभी p of x हो जाएगा p of a. Very carefully, p of x हो जाएगा p of a. 2 as it is, x क्यूब हो जाएगा a क्यूब. 2 x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a x हो जाएगा a इंटू a माइनस a. तो ये सब में हम लोग ने किया क्या बताया? हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने जहां पे x है वहां पे a सब्स्टिट्यूट किया. तो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. 2 a क्यूब इज गोइंग टू बी a क्यूब. We cannot simplify it further. 2a square as it is. Now here I have a into a
which is a square and minus a as it is. अभी ये पूरे सम में, पूरे टर्म में ये दोनों लाइक टर्म है, तो 2a क्यूब एज इट इज माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आने वाला है? माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आने वाला है? माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? क्या बात है, सोहम से a स्क्वायर, वेरी गुड सोहम, सौजन्य वेरी नाइस। तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा और माइनस a, और ये आगे सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, remainder is equal to P of A, that is this. So quickly copy down the sum. Quickly copy down the sum, students, quickly. Done? Okay, Shruti is done. Razeen is done. Ayush is done. Murnal is done. Wow, super fast students. Mahi is done. Yashika Pujari is done. Ayan Batliwala done. Aishwarya Garge done. Riya Thora done. Amrita done. Ananya Shetty done. Done. Oh, okay. It's a very easy sum, students. क्या करना है? सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां पे x है वहां पे a डाल दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। Okay, very simple, very simple. Okay. Now, students, I am going to change the screen. So, yes, just tell me your doubt. Jay Chauhan, tell me your doubt. Why is it AQ minus 2A square minus A? What? It depends on the question, right? Question में जहां पे भी x है वहां पे A लिखा है. Okay, great. Now we'll go ahead to the next sum. I will pick up somebody. Okay. Okay. Take a screenshot. Ayushi, I've picked you up. Ayushi Patel from Villebar Lab. Can you hear me? Hi, sir. Hello. 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 So did you understand both the sums? Yes, I understood both the sums. Both the sums. Okay, now this is a different sum. I'm going to take your help to explain. As I told all of you, there are exactly two types of sum in this entire exercise. खाली नाम बदल जाता है. अभी हम लोग ने रिमाइंडर ढूंढने का देख लिया. अभी कैसा है ये क्वेश्चन? पढ़ो आयुषी जरा, तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे? Yeah. If the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then find the value of m. अच्छा, what is different in this sum, Ayushi? Ayushi सो गई? We have to solve it as the way we did in the previous sum. No, what I didn't ask you something. That I am asking what is different in this sum. क्या अलग है इस सम में? प्रीवियस सम से सम अलग कैसे है? क्या है मेजर डिफरेंस? आयुषी, you can hear me? Hello. हाँ आयुषी, you can hear me आयुषी? Yeah, so I can hear you. मैं बोला क्या डिफरेंट है ये सम में? प्रीवियस सम और ये सम में मेजर डिफरेंस क्या है? So I guess there's no difference. Okay, there is no difference. Okay, Ayushi. We will just see on chats if anybody. क्या बात है? Mrunal is saying remainder is given. Saujanya Shetty is saying remainder is given. The difference major है ना आयुषी? प्रीवियस सम में बोला था रिमाइंडर ढूंढो और यहाँ पे बोला ये लो रिमाइंडर. दिख रहा है? आयुषी समझा? ये आयुषी किधर चली गई? I think Ayushi slept. What we'll do is the person Mrunal gave me the answer. I'll pick up Mrunal. Hi Mrunal. Hi sir. Hi. I don't know. Ayushi ran away. She slept. She got tired. Okay, you can help me. You told me. Yes, you tell me the difference. What is the difference? So the remainder is already given. The remainder is already given. Now, Mrunal, you will help me explaining the sum. Okay. Now, what we will do is, now students remember, whenever the remainder is given, forget about the remainder. Start solving the sum as if the remainder is not given.
हम लोग इसको ऐसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम दिया हुआ नहीं है। तो मृणाल, रिमाइंडर नहीं दिया होता तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? So we will divide y cube minus 5y square plus 7 plus 7. नहीं, अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे ना, डिवाइड क्यों करेंगे? सबसे पहले इसको नाम दे दो p ऑफ y क्यूब। Yes, sir. p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर होना चाहिए, इधर प्लस है। Yes. टेक्स्ट बुक में माइनस है कि प्लस है? देखो जरा, यू हैव अ टेक्स्ट बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Yes, yes. क्या है, प्लस है कि माइनस? Minus, minus. ओके, तो 5y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m है। नाउ ये बताओ मृणाल, द डिवाइजर इज y प्लस 2, तो क्या सब्स्टिट्यूट करूं? -2. -2, क्योंकि प्लस 2 है तो -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग क्या Yes. करेंगे, जहां जहां पे y है वहां पे -2 वहां पे -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, टाइपिंग एरर हो गया। तो p ऑफ y क्या हो जाएगा? p ऑफ -2. y क्यूब क्या हो जाएगा? -2 cube. -2 क्यूब Minus माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 minus 2 square 2 स्क्वायर प्लस plus 7 in bracket -2 -2 plus -2. No, plus प्लस m। m. Yeah. तो अभी मृणाल ने एग्जैक्टली क्या किया हमारे लिए? मृणाल ने क्या किया, जहां जहां पे y है वहां पे -2 सब्स्टिट्यूट किया। y -2 बिकॉज y प्लस 2 था तो -2 सब्स्टिट्यूट किया। तो मृणाल, हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। Yes. तो मृणाल, -2 का क्यूब क्या होगा? -8. ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स 2 का क्यूब 8 होगा। अभी याद रखो, अगर बेस में नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव होता है, और पावर इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव होता है। राइट मृणाल? Yes, sir. ओके, -5 एज इट इज। मृणाल, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. 4। अच्छा, फिर प्लस इंटू माइनस मृणाल? Minus. माइनस 7 2 सर 14. प्लस। But sir, plus minus will be minus, but the sign of the greater number is there, na? मृणाल, यू आर मिक्सिंग अप समथिंग। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है। जब तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो तब बड़े नंबर का साइन देते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? 7 और 2 को Subtract. मल्टीप्लाई। Ah, sorry. ओके, तो -8 एज इट इज। Yes. व्हाट इज 5 4s आर? 20 -14 plus m. प्लस m। अच्छा, अभी -8 -20 -14 क्या होएगा बताओ? चलो चैट बॉक्स में बताओ। आई हैव नॉट बीन सीइंग चैट बॉक्स फॉर अ व्हाइल। So wait, I'll do. मुझे आंसर दे दिया है सौजन्य शेट्टी ने, ऐश्वर्या घारगे फ्रॉम घाटकोपर, ऋषि जैन, ऐश्वर्या थोर्राट, ऋषि जैन, ऋषि कपाले, ईशांत शेट्टी। So 14. -14 कि +14? -14. It will be -42. -8 -20 will be -28. ऐड करेंगे, सेम साइन है ना? Yes, yes. फिर -28 -14 will be -42 plus 42. Yeah. So this is p of -2. Yes. Okay. अच्छा, तो can I say by remainder theorem? By remainder theorem, remainder is equal to p of -2. तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -42 Plus m. प्लस m। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं? Yes. अच्छा, बट क्वेश्चन में बोला है ना, रिमाइंडर कितना बोला है? 50। ये मुझे गिवन है। Yes. अच्छा, मैं रिमाइंडर के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर Yes. 1 से। Yes. को उठा के इधर लिख दूं तो r के जगह पे आएगा -42 प्लस m इज इक्वल टू 50। ये कहां से मिला? फ्रॉम 1। Yes. Sir, now m m is equal to 50 plus 42. 50 -42 इधर गया तो +42, m हो जाएगा कितना? 92. 92। समझ में आया मृणाल? Yes, sir. ध्यान से कैलकुलेशन एरर करोगे तुम। क्या बात है सौजन्य, क्या बात है निकिता, क्या बात है ऐश्वर्या। थैंक यू मृणाल, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 2 minutes to copy down the sum. Quickly copy down the sum and then we shall go ahead to next step of sum. Done with the sum. क्या बात है, डन डन डन, सुपर फास्ट। 9th स्टैंडर्ड का बैच बहुत ज्यादा फास्ट है, 10th स्टैंडर्ड से भी फास्ट है। क्या बात है हनी,
Sadhya, very nice, very nice. I want to answer. Now will you be able to hear me? I want to answer, sir. Now will you be? Yeah, definitely, definitely. Jay Chauhan, you've been telling me again and again you have a doubt, and I'm asking you to. We can substitute, Ayushi. I'm asking you what is your doubt. Yes, yes, Nabil. Time but jaldi जाना चाहिए. Jay Chauhan, once again, what is your doubt? Last sum का fifth sum बाद में देखेंगे. The sum is easy, right? Okay, 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 okay. Next sum. Take a screenshot to the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. Okay, okay, okay. Done, 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 done. Okay. Now students, हम लोग ने दो टाइप का सम किया, तुमको पता होगा सबको. Okay. हम लोग ने दो टाइप का सम किया, यही दो टाइप का सम रिपीट हो रहा है बार बार अभी, और कुछ नया करना ही नहीं है, खाली नाम अलग देना है. Now, I will pick up somebody. I'll pick up somebody. I'll pick up somebody. Who wants to answer? Who wants to answer? Okay, Daniel. Daniel wants to answer. Daniel. He's a very nice kid. Hi, Daniel. Hi, sir. How are you? Okay. अच्छा डैनियल, पहले बात तो बता, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है क्वेश्चन में? Use factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3 or not. नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, खाली प्रीवियस सम में हम लोग बाय फैक्टर थ्योरम लिखते थे ना, अभी क्या लिखेंगे डैनियल? सॉरी, प्रीवियस सम में बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखते थे, अभी क्या लिखेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम. अच्छा, मुझे कैसा पता चलेगा कि ये फैक्टर है क्या नहीं? सर आपको डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करना जरूरी है? प्रीवियस सम में तो डिवाइड नहीं किया, फिर भी रिमाइंडर मिल गया था. मेन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? रिमाइंडर चाहिए, बराबर डैनियल? यस सर. अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, राइट? यस सर. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला रिमाइंडर ढूंढते हैं. तो रिमाइंडर ढूंढने को सीखा था हम लोग ने डैनियल. यस सर. तो सबसे पहला पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं p of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. तो डैनियल, x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं? -3. अच्छा, क्यों -3? सर क्योंकि साइन चेंज होता है. क्या साइन चेंज होता है? बराबर है, क्योंकि x प्लस 3 है ना. व्हाट डैनियल इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स. यहाँ पे +3 है, और जब +3 होता है ना तो हम लोग -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन चेंज करके, राइट डैनियल? तो डैनियल मुझे 1 बाय 1 बताओ क्या आएगा. p ऑफ x क्या हो जाएगा डैनियल? सर p ऑफ -3. p ऑफ -3. x स्क्वायर क्या हो जाएगा डैनियल? -3 स्क्वायर. -3 स्क्वायर. 2 इंटू x क्या हो जाएगा डैनियल? 2 इंटू -3. 2 इंटू -3. -3 क्या हो जाएगा डैनियल? -3. -3. वो कंफ्यूज करने के लिए मैं पूछा. -3 को कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लोग x के जगह पे -3 डालेंगे. ग्रेट. अच्छा, अभी -3 का स्क्वायर? 9 की 6? 9. ओके. स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -3 स्क्वायर इज 9. व्हाट इज +2 इंटू -3? -6. क्या बात है, -6 -3. अभी डैनियल इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, मुझे बताओ आंसर क्या है? 0. क्या बात है. 9 minus 6 is 3. 3 minus 3 is 0. तो I can say p of -3 is 0. तो Daniel, can I say the remainder is 0? Yes sir. तो can I say it is a factor? Yes sir. खाली प्रेजेंटेशन में क्या चेंज होएगा? प्रीवियस सम तक बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखते थे, बाय फैक्टर थ्योरम. x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. Easy Daniel? Yes sir. क्या बात है. Thank you Daniel. You're welcome sir. Yeah.
Thank you, Indrayani. It is because of you I came to know. Otherwise, I was speaking and I just didn't realize I have put myself on mute. Thank you so much, Indrayani. Okay, so students, जल्दी टाइप लिखो. Easy, difficult, easy, difficult, easy, difficult, easy, difficult. Some easy था, difficult था, easy था, difficult था. Easy, 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 easy. Any confusion? कब फैक्टर थ्योरम लिखना है और कब रिमाइंडर थ्योरम? बहुत सिंपल है. क्वेश्चन में रिमाइंडर बोला है तो रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन में फैक्टर बोला है तो फैक्टर थ्योरम. लेकिन सम सॉल्विंग में कुछ भी डिफरेंस आने वाला है क्या? सम सॉल्विंग में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है? नहीं. सम दोनों सेम है. सम सॉल्विंग दोनों को सेम तरीके से करना है. दोनों के अप्रोच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. खाली लिखना है प्रेजेंटेशन. जब फैक्टर पूछा तो फैक्टर थ्योरम, जब रिमाइंडर पूछा तो रिमाइंडर थ्योरम. क्या बात है लुक? डन 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 डन. इजी पीजी. क्या बात है आयुष? Okay, great. We'll go to the next sum. चलो, अभी ये तुमको खुद से सॉल्व करने का. आई एम गिविंग यू 2 minutes. जो सॉल्व करेगा सबसे पहला आंसर बताएगा उसको मैं पिक करेगा. ओके. अंकिता गड़बड़. अंकिता गड़बड़. Aishwarya Gharge has already given me the right answer, so Aishwarya will help me to solve the sum. Aishwarya Gharge from Ghatkopar. Hello, Aishwarya. Hello, sir. Yeah, we'll wait for a minute, Aishwarya, so that everybody else could finish the sum, and then we will discuss the answer. Okay? Okay, sir. Yeah. Aishwarya Thorat, yes, right hai. Yes, Ayan. Yeah. Answer is right. Very good. Harshit Patel. Good. Ankita More. फटके दूंगा. फटके. चेक करो आंसर. ओके. ऐश्वर्या, सबसे पहला P of X तो यहाँ पे हमको नेम लेने का जरूरत नहीं क्योंकि दिया है. तो सबसे पहला ऐश्वर्या तुम मेरे को बताओ सब्स्टिट्यूट क्या करूँ X के जगह पे? Sir, X will be +3. काहे +3? Sir, here X minus 3 is given, so the star sign will be changed. Yes, exactly what Aishwarya is saying is absolutely correct. यहाँ पे X -3 है, and as we discussed and been discussing repeatedly, अगर -3 है तो ऐश्वर्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? +3. Perfect. तो P of X क्या हो जाएगा ऐश्वर्या? P of 3. क्या बात है. 2x cube क्या हो जाएगा? 2x cube will be 3 cube. क्या बात है. -x square क्या हो जाएगा? -3 square. क्या बात है. और -45 as it is. -1. Okay. Now what is 3 cube into 2? 3 cube. 2 into 27. That is? So that will give us 54. Just a second, Aishwarya. Perfect. The way she explained is perfect and flawless. 3 cube is 27, and that is why she mentioned 27 into 2. That is 54. Aishwarya, then 3 square? 3 square is 9. 54 minus 9 and minus 45. Okay. Can you tell me the answer now? 0 is the answer. Why? Because 54 minus 9 is? Sir. 45. And 45 minus 45 is 0. 0. So definitely it is the 0. So what? Bifactor theorem. क्या बात है? Bifactor theorem. Minus 3 is the factor of. इधर है ना ऐश्वर्या, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कैसा पूछा देखो ना. Q of X is the factor or not पूछा है ना. Yes. तो हम लोग वैसे ही आंसर लिखेंगे. Q of X is the factor of P of X. समझा? Yes, sir. Okay. Easy. Yes, sir. Easy. Okay. Thank you, Aishwarya. Thank you, sir. Why do I mute all of them and I go myself on mute? I come to know. Okay. Thank you, Hetvi. Okay. Quickly solve the sum. जल्दी solve करो. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? P of X के जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? जल्दी बताओ.
पी ऑफ एक्स के जगह सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? क्या बात है, माही गोयल इज द फर्स्ट वन टू आंसर, देन सौजन्य शेट्टी, देन ऐश्वर्या थोराट, हर्षित क्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। काहे 1? क्योंकि x -1 दिया है डिवाइजर, तो -1 है डिवाइजर, तो हम लोग +1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर 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 क्लियर, क्या बात है, क्या बात है। पी ऑफ 1, यस समीना, जल्दी बताओ रिमाइंडर क्या आया, फैक्टर है क्या नहीं? क्या बात है, आर्या इज डन। आयुषी, व्हाट इज द रिमाइंडर? ओके ऐश्वर्या, थैंक यू। वैष्णवी, वेरी गुड। आर्यन शेट्टी, वेरी गुड। अयन बाटली वाला, वेरी नाइस। क्या बात है, सबको आंसर भी आ गया, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पी ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 बिकॉज x -1 दिया है क्वेश्चन में, द डिवाइजर इज x -1, सो विल सब्स्टिट्यूट 1। x क्यूब हो जाएगा 1 क्यूब, -x स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, -x हो जाएगा -1 -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, -1 -1। नाउ स्टूडेंट्स, +1 -1 गेट्स कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड -1 विल बी -2। सो सिंस -2 इज द आंसर, by factor theorem, q of x is not a factor of p of x. I hope this is simple. Okay, 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 okay. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, fantastic. Take a screenshot, 5 seconds. 1 2 3 4 5 हो गया, लिखिए सबका। क्या बात है, डन 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 डन, everybody is done. क्या बात है, very good, very good, very good. We'll go to the next sum. अच्छा, x -2. Now students, I am not looking at the chat box for a minute, so just pay attention for some time. x -2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20. Find the value of m. अभी स्टूडेंट्स ये सम भी देखो सेकेंड टाइप वाला सम है, जैसा वो सम था जहां पे रिमाइंडर है दिया था और ढूंढना नहीं था। ये सम भी डिफरेंट है प्रीवियस सम से। यहाँ पे बोला है फैक्टर है, मतलब मुझे पता है अगर फैक्टर है तो स्टूडेंट चैट बॉक्स 1 मिनट में देखता हूं, अगर मुझे बोला है फैक्टर है तो सबसे पहली बात तो मैं पॉलिनोमियल को नाम दे देता हूं p ऑफ x। सबसे पहली बात x -2 है तो मैं +2 सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मुझे बताओ अगर मैं +2 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या बात है, सब लोग सबको पता है अगर फैक्टर बोला है तो आंसर 0 आना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं आंसर 0 आएगा कि नहीं। इनफैक्ट जो भी आंसर है वो 0 ही है, मुझे पता है। तो हम लोग सबसे पहला x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। p ऑफ x हो जाएगा p ऑफ 2, x क्यूब हो जाएगा 2 क्यूब, माइनस mx स्क्वायर हो जाएगा m इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 10x हो जाएगा 10 इंटू 2 -20। नाउ ट्राइंग टू सिंप्लीफाई, 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4, तो माइनस m इंटू 4, 10 2 20 -20, प्लस 20 -20 गेट्स कैंसिल्ड, तो p ऑफ 2 हो जाएगा 8 माइनस m इंटू 4 इज 4m। स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ओके। बट क्वेश्चन में बोला है कि x -2 इज द फैक्टर ऑफ mx क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x -20। उसका मतलब क्या होता है कि p ऑफ 2 बाय फैक्टर थ्योरम 0 ही आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे p ऑफ 2 इतना आ रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि वो फैक्टर है तो p ऑफ 2 0 आना चाहिए। ये समझा सबको? क्या बात है सौजन्य, वेरी इंटेलिजेंट। नो, इट इज नॉट एज्यूम्ड टू बी 0 स्टूडेंट। बच्चा बोला है ना यहाँ पे फैक्टर है, अगर फैक्टर है बोला है तो रिमाइंडर तो 0 ही आना चाहिए ना, राइट? अगर फैक्टर है बोला है तो 0 ही आना चाहिए। तो मुझे मालूम है p ऑफ 2 0 आना चाहिए, लेकिन p ऑफ 2 इतना है। अभी हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, या फिर ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में p ऑफ 2 0 बोला है मुझे, तो इक्वेशन नंबर 1 में p ऑफ 2 मुझे मिला 8 - 4m। तो ये p ऑफ 2 को मैं उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना, जहां पे p ऑफ 2 है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 - 4m, तो मैं लिख सकता हूं 8 - 4m इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से p ऑफ 2 इज 0 और मेरे हिसाब से p ऑफ 2 इज दिस, मतलब p ऑफ 2 के जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या बात है, वेरी नाइस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, +8 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, हो जाएगा -8, -4m इज -8, -4m डिवाइड हो जाएगा तो -8 - 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4/2 m विल बी इक्वल टू 2। क्या बात है, सब लोग आंसर मेरे से पहला बात बता देगा।
अगर तुम लोग ये आंसर मेरे से पहला बता देगा तो मेरा पोपट होता है ना। थोड़ा लिखो यार, इतना फास्ट सॉल्व नहीं करने का, मालूम है इंटेलिजेंट है तुम लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड सिद्धांत, या वेरी नाइस, वेरी नाइस। द सम इज इजी राइट, इतना ओके। गिविंग यू 2 minutes टाइम टू कॉपी डाउन द सम। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कॉपी डाउन करो, वेरी 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 इजी। नॉट पी इज नेसेसरी, बट कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, और जब कुछ नहीं होता तो वी गिव प्रेफरेंस टू पी। इजी, ये लास्ट सम है क्या सर? नहीं बाबा, अभी 1 2 3 सम और बाकी है इजी इजी वाला। डन डन डन, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। सबका हो गया? If not done, take a screenshot. If not taken a screenshot, take it for the video. Now students, for each of the polynomial, find p of 1, p of 0 and p of -2. तो बहुत सिंपल, इससे वैल्यू ढूंढने बोला है। ऐसा हम लोग ने 3.4 में भी किया था, ये 3.5 में रिपीट हुआ है। तो हमको बोला है p of 1 ढूंढना है, p of 0 ढूंढना है और p of -2 ढूंढना है। पहले वाला सम मैं करूंगा, तो सबसे पहले y के जगह पे 1 डालूंगा, p of 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर -2 into 1 + 5। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ध्यान दो, p of 1 ढूंढने बोला है, p of 1 ढूंढने बोला है, p of 0 ढूंढने बोला है, p of -2 ढूंढने बोला है। तो एक एक करके सब ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले p of 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 into 1 is 2 + 5, 1 - 2 is -1 + 5 is 4। वैसे p of 0 will be 0 square, -2y will be 2 into 0 + 5, 0 square is 0, 2 into 0 is 0 + 5। फिर p of -2 सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी ये कॉपी करो और सम फिनिश करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर करो आंसर। इसके बाद और 2 सम है, और मैं कुछ सम्स होमवर्क देने वाला हूं, वो नोट करके लेना। आई एम गोइंग टू चेक देम अप। नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो ऑन करके चेक करूंगा होमवर्क टू शो मी द बुक। ओके, आयुषी पटेल फ्रॉम विलेपार्ला says 5, आयुष हांडे says from घाटकोपर says 13, रिया थोराट says -8, हनी टोलानी says 5, आयुषी पटेल is again telling 5, इंद्रयानी says 5, रिया थोरा से -8। so people are giving me way different answers। तो हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। y स्क्वायर हो जाएगा -2 स्क्वायर, -2 y हो जाएगा -2 + 5। तो y के जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट किया। मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग मी राइट आंसर। -2 का स्क्वायर 4 है ना स्टूडेंट्स। यहां पे माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, 2 2 4 + 5, 4 + 4 8, 8 + 5 is 13। so the right answer is 13। so all those who have given me right 13 as the answer is right। yes yes Mrunal, your answer is right, I know that। yes Tirth, yes Siddhant, बहुत इजी है राइट, बहुत इजी। ओके cool done। okay डिम्पल डन, सैमुअल डन, सौजन्य डन, सुजैन डन, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट सम सिमिलरली पूरा तुम्हारे लिए। जो सबसे पहले तीनों का आंसर देगा उसको अनम्यूट करूंगा। चलो तुमको 2 मिनट दिया, फटाफट सॉल्व करो। नहीं ये मैं सॉल्व करता हूं। चलो तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं सॉल्व करता हूं। मुझे क्वेश्चन में बोला है इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m³ + 2m + a is 12। मतलब जैसा प्रीवियस सम में रिमाइंडर बोला था और फैक्टर बोला था, यहां पे पहले से बोला है कि आंसर तो 12 ही आने वाला है भाई, कुछ भी कर लो आंसर तो 12 ही आने वाला है। हमको a का वैल्यू ढूंढना है और m = 2 बोला है। तो हम लोग चेक करते हैं कि आंसर क्या होता है, और हमको मालूम है दैट विल बी इक्वल टू 12। तो p of m हो जाएगा p of 2, m³ हो जाएगा 2³ प्लस 2m हो जाएगा 2 into 2 plus a। 2³ is 8, 2 2s is 4 plus a, 8 + 4 is 12। तो p of 2 हो जाएगा 12, ये 12 plus a।
अभी ये आंसर मुझे मिला, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आंसर 12 आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से P of 2 विल बी 12. नाउ स्टूडेंट्स, P of 2 का वैल्यू यहां से उठा के मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. P of 2 क्या है, 12 प्लस ए. 12 प्लस ए इज इक्वल टू 12. तो मैंने क्या किया, P of 2 के जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहां से. इसको सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 1 लिख देंगे, प्लस 12 उधर जाएगा, माइनस 12, ए विल बी 0. इजी. क्या बता, वापस मेरे से पहला आंसर, इतना फास्ट करता है तुम लोग. वेरी नाइस. इजी राइट, इजी 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 इजी, वेरी इजी, वेरी. ओके 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 ओके, नाइस 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 नाइस. देखो दो टाइप का सम है, एक में आंसर ढूंढने बोला रहता है और एक में आंसर दिया रहता है और हमको कंपेयर करके कुछ ए एम जो ढूंढना है वो. दो टाइप का सम है, दोनों टाइप का सम समझ में है. नो वेद, -2 नहीं आएगा, m इक्वल टू 2 बोला है, m प्लस 2 नहीं बोला है. ओके ओके, ना इजी पीजी. ओके, नाउ कॉपी डाउन द होमवर्क क्विकली, स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का, एंड वी फिनिश आवर एक्सरसाइज एज वेल. होमवर्क लिख लो सब लोग. ओके, thank you, and I'm done with the chapter, done with the lecture. Thank you so much. I hope you understood everything. Have a great day. Enjoy. Bye 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 everybody. Thank you Nikita. Very nice, very nice. Thank you everyone. Thank you everyone. Enjoy. Yeah, even I enjoy with 9 especially. Da. Thank you Dhruv sir.